नमस्कार। एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एमएससी फाइनल महाराजा रंजीत सिंह यूनिवर्सिटी का एक पेपर है जिसका अध्ययन हम इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। पिछले वीडियोस के अंदर हम ग्राफ थ्योरी पर कुछ थ्योरम्स कर रहे थे। आज हम यूलेरियन ग्राफ डिफाइन करेंगे। एक नया सब टॉपिक ग्राफ थ्योरी का कंसिडर करेंगे। यूलेरियन ग्राफ डिफाइन करने से पहले हम यूलेरियन ट्रेल, यूलेरियन सर्कल्स एंड यूलेरियन ग्राफ परिभाषा देखें। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यूलेरियन ट्रेल। In Eulerian trail, in a graph is a trail that contains every edge of a graph. Suppose this is my graph. So I start from here. I say this is A1, this is A2, A3, A4 and A5. So I run from here, then A2, then A3, then A4 and A5. So this trail A1, A2, A3, A4, A5 is an Eulerian trail. An Eulerian trail in a graph is a trail. Trail means a walk without repeating of edge that contains every edge of the graph. अगर ग्राफ की सारी एजेस हमारे ट्रेल के अंदर आ जाए, हमारी वाक के अंदर आ जाए और एक एज सिर्फ उस वाक के दौरान एक बार ही आए, रिपीट न हो, तो उस केस के अंदर हम उसको यूलेरियन ट्रेल कहते हैं। यूलेरियन सर्किट दूसरी डेफिनेशन, सर्किट A Eulerian circuit is a closed Eulerian trail। जो अभी यूलेरियन ट्रेल की बात की अपन ने, तो यूलेरियन ट्रेल को अगर क्लोज कर दे तो उस केस के अंदर ये यूलेरियन सर्किट बन जाएगा। तो दिस इज नॉट ए क्लोज वर्क बिकॉज वी स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स V but end at vertex U in this Eulerian trail, but you consider such type of work. I start from U, V, W and again U. So it's starting and ending point. This is our starting and ending point, and this is an Eulerian trail because we walk through every edge once we consider an edge during the walk, and we start and where the end point is also on the starting point of the walk. So this is in Eulerian circuits. A graph is called Eulerian graph. It contains a closed walk running through every edge of its exactly one. This is a important thing. Eulerian graph. A graph that has an
Eulerian circuits. Eulerian circuits. That has an Eulerian circuit. अगर ग्राफ के अंदर हमारे पास एक यूलेरियन सर्किट्स है तो उस केस के अंदर हम उस ग्राफ को यूलेरियन ग्राफ बोलते हैं. That is, a graph is Eulerian if it contains, if graph contains a closed walk running through every edge of it exactly once. आप इस तरह से अपने ग्राफ के ऊपर मूव करो कि आपका जो वाक है वो क्लोज वाक रहे, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम रहे और हर एज काम आ जाए और सिर्फ एक बार काम आए. जैसे फॉर एग्जांपल्स, यू कैन टेक सम एग्जांपल्स ऑफ दिस आल्सो. I have this vertex. This is a Eulerian graph. Because I can start from here, this point, I can move here in that direction, this way. I am not repeating my edge and I reach to these points. So I start at this point and end at this point. This is a closed circle and it contains all the edges of the graph. So this graph is a Eulerian graph. I can consider such type of graph also. चलिए इसके अंदर और बना देते हैं, इधर भी बना लेते हैं. I am considering such type of graph. So this is also a Eulerian graph because I can start from any points. Suppose I start from these points. I have a closed walk through every edge, and we taking the walk or we traverse the walk through a edge once and only once. तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया मेरी वॉक, मैं यहाँ आ जाता हूँ. यहाँ आने के बाद में मैं इस पर चल लेता हूँ, इधर आ जाता हूँ, इधर आ जाता हूँ, यहाँ आ गया, इधर चला गया, इस पर मूव कर गया, इस पर मूव कर लिया, इस पर मूव कर लिया, वापस इस पर आ गया एंड यहाँ से मैं इस एज पर आ गया. यहाँ एक वर्टेक्स है, यहाँ से मैं इस वर्टेक्स पर आ गया थ्रू द एज, इस वर्टेक्स से मैं इस वर्टेक्स पर आ रहा हूँ थ्रू द एज एंड देन this is my starting and terminal points. So this is, in this graph we have a closed walk which contains every edge once. We are not repeating the edge and we can travel or we can walk all the graph. So this is also other example of Eulerian graph. If you consider one more example, this is also an Eulerian graph.
in this also we can move in this way, a closed circuits. So these are the examples of. So in this Eulerian graph we are seeing that किसी भी वर्टेक्स के ऊपर अपन जब एंटर करते हैं तो उस वर्टेक्स से हम वापस बाहर निकल रहे हैं हर बार। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो इवन नंबर में रहेगी। क्योंकि अगर मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं ये मानूँ, मैंने यहाँ से ट्रेवल स्टार्ट किया मेरा, तो ये पर आऊँगा तो वापस इसके अंदर भी आना पड़ेगा, इस वर्टेक्स के अंदर। सो दिस इज आल्सो डिग्री ऑफ 2। यहाँ से मैं अगर इधर निकल जाता हूँ और किसी भी तरह से इसमें वापस घुसता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एंटर करने की और एग्जिट करने की, दोबारा एंटर करूंगा मैं इस वर्टेक्स पर तो दोबारा मुझे को एग्जिट भी करना पड़ेगा। इसलिए हर बार किसी भी वर्टेक्स के ऊपर यूलेरियन वॉक के दौरान हम जब एंटर करते हैं किसी वर्टेक्स के अंदर तो उससे अपन वापस भी एग्जिट करते हैं, सिवाय हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके अलावा। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आकर अपन को एक बार एंड करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम हमारे उसकी डिग्री 1 शुरू हो जाती है और उसके अंदर जितनी भी बार घुसेंगे और उससे जितनी बार भी निकलेंगे हर बार 2-2 डिग्री मिलती जाएगी। लेकिन एंड भी वापस वही करना है, इसलिए ओवरऑल उस वर्टेक्स पर भी जो अपना स्टार्टिंग वर्टेक्स है उसकी डिग्री भी इवन रहेगी। तो अपन ये देख रहे हैं यहाँ पर कि कोई ग्राफ आपका यूरेनियन है तो इसका मतलब उस ग्राफ की डिग्री 2 रहेगी। और दूसरा यूरेनियन ग्राफ है, इट मीन्स इट इज़ कनेक्टेड, क्योंकि हम सारी की सारी एज कवर कर लेते हैं, सारी एज कवर कर लेते हैं। इसका मतलब सारे वर्टेक्स भी अपने कवर हो रहे हैं और उसके अंदर एक यूरेनियन सर्किट्स अपने पास आ रहा है। तो चलिए इस पर थ्योरम्स करते हैं अपने। A connected graph G is Eulerian if the degree of every vertex is of even। देखिए हम कह रहे हैं कि एक कनेक्टेड ग्राफ G इज ऑफ यूलेरियन, कोई भी कनेक्टेड ग्राफ है वो यूलेरियन होगा इफ द डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज इवन। तो जो अपन अभी कह रहे थे इफ एंड ओनली इफ, इट मीन्स हम एक बार अपन मानेंगे कि हमारा ग्राफ यूलेरियन है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि उस ग्राफ की वर्टेक्स की डिग्री, हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है। और दूसरी बार अपन मानेंगे कि अगर हमारा ग्राफ कनेक्टेड है और हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन है देन इट इज ए यूलेरियन ग्राफ। यूलेरियन ग्राफ मीन्स देयर इज ए क्लोज्ड वॉक और वी से देयर इज ए सर्किट और वी से देयर इज ए यूलेरियन सर्किट्स। यूलेरियन सर्किट मीन्स a trail that contains every edge of the graph, and since we are using the word circuit it means it starts from a vertex and at the same vertex we end our walk। okay, तो हम मानते हैं लेट जी बी ए यूलेरियन ग्राफ। पहले अपन ये मान लेते हैं कि जी हमारा एक यूलेरियन ग्राफ है। अगर जी यूलेरियन ग्राफ है इसका मतलब जी हैज एन यूलेरियन ट्रेल, कि उसके अंदर एक ऐसी यूरेनियन ट्रेल है या कहें कि यूरेनियन सर्किट है। मैं कहूँ इसको ट्रेल कहने के बजाय इसको अगर अपन सर्किट यूज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि इट हैज ए यूरेनियन सर्किट एंड इट सर्किट मीन्स जी कंटेन्स ए क्लोज वॉक। जी के अंदर एक क्लोज वॉक है विच इंक्लूड्स ऑल द एजेस ऑफ जी। इन ट्रेसिंग द यूरेनियन ट्रेल, जब हम यूरेनियन ट्रेल ट्रेस करेंगे तो जैसे मैंने अभी बताया कि वी ऑब्जर्व दैट एवरी टाइम ऑफ द वॉक मीट ए वर्टेक्स वी थ्रू 2 न्यू एजेस। हमेशा हम 2 नए एज के थ्रू किसी वर्टेक्स पर मिलती है। थ्रू वन एज वी एंटर्ड इन व्यू एंड थ्रू अदर वेज वी एग्जिट द वी। किसी भी वर्टेक्स को अगर कंसिडर करें ड्यूरिंग द वॉक आवर यूलेरियन वॉक, तो हम देखेंगे कि हर एक वर्टेक्स के ऊपर हम एक बार एंटर करते हैं और एक बार एग्जिट करते हैं। एंड दिस हैपन्स फॉर ऑल इंटरमीडिएट वर्टिसेस ऑफ द आवर वॉक एंड आल्सो फॉर द स्टार्टिंग एंड टर्मिनल वर्टेक्स बिकॉज बोथ आर द सेम। हेंस ईच वर्टेक्स ऑफ जी आर ऑफ इवन डिग्री। अगर जी आपका
एक यूलेरियन ग्राफ है, इट मीन्स इट हैज ए ऑफ इवन डिग्री। उल्टा मानते हैं अपन। अब हम मान ले रहे हैं कि सपोज ऑल वर्टिसेस ऑफ जी आर ऑफ इवन डिग्री। हम ये मान रहे हैं कि जी इज कनेक्टेड ग्राफ, जी इज कनेक्टेड ग्राफ, एंड ये और मान लेते हैं कि उसके जितने भी वर्टिसेस है ऑफ इवन डिग्री के हैं। Then we shall prove that G is Eulerian graph. Or for this, it is sufficient to prove that there exists a circuit which consists of all edges of G. उसके अंदर एक ऐसा सर्किट होना चाहिए जो पूरी की पूरी एज को कंटेन करता हो। We construct a graph starting from an arbitrary vertex V. So I am considering an example. चलिए अभी जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था उसी को ले लेते, बनाता हूँ मैं वापस। जैसे कि ग्राफ लिया था अपन ने, यहाँ कुछ इस तरह का से लिया, एंड देन अगेन ये अपने पास एक यूलेरियन ग्राफ है, अपन ने देखा था। तो हम कह रहे हैं कि अब हम मान रहे हैं कि हम एक ग्राफ ले रहे हैं जिसका हर एक जो डिग्री है वर्टेक्स, डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इवन। कोई भी एक वर्टेक्स उठाया अपन ने, चलिए अपन मान लेते हैं कि ये मेरा स्टार्टिंग वर्टेक्स है V, और इस स्टार्टिंग वर्टेक्स से मैं एक यूलेरियन सर्किट बनाता हूँ। यूलेरियन सर्किट या क्योंकि एक सर्किट बना रहा हूँ, तो मैंने पहले ये सर्किट कंसीडर किया। यहाँ से इस तरह से इसका सिर्फ इतना सा पार्ट ले लेता हूँ मैं। ये मैंने यूलेरियन सर्किट बना लिया। इस वर्टेक्स से मैंने स्टार्ट किया और मैं यहाँ आ गया, इस वर्टेक्स पर आया, इधर आया, इधर आया। दिस इज ए सर्किट। तो इस सर्किट को हमें ये प्रूव करना है कि हमारा ये ग्राफ यूलेरियन ग्राफ है। तो इस सर्किट ले लिया, इस सर्किट के अंदर मैं इस तरह से मूव कर गया। दिस इज माई फर्स्ट यूलेरियन क्लोज सर्किट है। इफ इट इज इक्वल टू आवर ग्राफ, देन ओके वी कैन से दैट ग्राफ इज आवर एन यूलेरियन ग्राफ। अगर ये पूरा ग्राफ नहीं बन रहा है, अभी भी कुछ एजेस बाकी रहेगी, जिसे अपन देख रहे हैं कि यहाँ ये सारी बाकी रहेगी, तो उसके अंदर कंसिडर के अंदर हम एक कंसिडर करेंगे कि इसको बाहर निकाल देते हैं। इस ग्राफ से इसको बाहर निकाल देते हैं, तो अपने पास जो नया ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। जो बच गया ये ग्राफ बच गया अपन का, इस ग्राफ का ये पोर्शन है जो बच गया। तो दिस इज कॉल्ड सेट टी एंड दिस इज आवर जी डैश। द यूनियन ऑफ दीज टू, दिस ग्राफ वर्टेक्स इज सेम, दिस इज वाई, देन दिस इज आल्सो वाई। तो इन दोनों का यूनियन अपने पास ये ग्राफ था। तो हम कह रहे हैं कि हमने पहले एक क्लोज ट्रेल कंसिडर की। तो क्लोज ट्रेल कंसिडर की, V से स्टार्टिंग लिया अपन ने, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल, और हमने क्लोज ट्रेल बना ली। और इस क्लोज ट्रेल से हम देखते हैं कि ये क्लोज ट्रेल अगर हमारे ग्राफ के इक्वल है, देन we can say that the graph is Eulerian, or if it is not equal, then we can remove this trail from our main graph and we get another graph G dash. Now since G is connected, so there is some connection between these two graphs. कुछ ऐसे वर्टेक्स होंगे जो इनमें कॉमन होंगे। तो जैसे अपन ने देखा कि इस वर्टेक्स से अपन
एक्स पर अपन ने इसको तोड़ लिया था ग्राफ को, तो ये एक्स में कॉमन है, तो जो कॉमन वर्टेक्स है उस कॉमन वर्टेक्स से हम वापस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हमने इस वर्टेक्स का नाम दिया एक्स और इसका नाम दे देते हैं अपन टी। मैं एक्स से स्टार्ट करता हूं और एक नई वाक लेता हूं, ट्रेल लेता हूँ, क्लोज ट्रेल दूसरी कंसिडर कर लेता हूँ मैं, और मैं इसके बाद में यहाँ पर आ जाता हूँ कि इस एक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ और इधर चल रहा हूँ, फिर इधर आ जाता हूँ, यहाँ आ गया। चूंकि हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन है इसलिए हम उससे एग्जिट कर सकते हैं और उसे वापस एंटर करेंगे। तो मैंने ये कंसिडर कर लिया, ये कंसिडर कर लिया, इसका मतलब मैंने एक नई ट्रेल और ले ली और नई ट्रेल मेरी एक्स से स्टार्ट हुई है जो इस तरह से जा रही है, बीच के अंदर टी वर्टेक्स है और देन यहाँ वाई, और इस टाइप से मेरे ये नई वर्टेक्स आ गई। और इसको मैं बोल देता हूँ सबसे पहले टी एंड दिस इज सपोज कैपिटल एस। वी कैन join this S with T, and if S union T is either equal to G or not equal to G, तो इन दोनों को अगर मैं यूनियन करता हूं तो वापस मेरे G के इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन अभी भी अपना बाकी पड़ा है जो हमारी ट्रेल के अंदर नहीं आया। तो मैंने देखिए वॉकिंग स्टार्ट की थी शुरू के अंदर पर्टिकुलर पॉइंट इस वी से, और इस तरह से वॉक करते हुआ वापस वी पर आ गया था। तो जो ही एक क्लोज वॉक मेरी खत्म हुई जिसके अंदर हर एज को जो मैंने कंसीडर किया इस वॉक में वो एक ही बार आई है, तो उसको मैंने मेरे ग्राफ से अलग कर लिया। जो बच गया ग्राफ उसको मैंने दोबारा ट्रेस कर दिया, दोबारा ड्रा कर लिया। दिस इज कॉल्ड द जी डैश। If this graph is equivalent to main graph, then we can say we have a walk or closed walk in which we travels through every edge and once we consider edge during the walk. If it is not so, then it has some part, there is some part of G which are not in our first closed walk, so we can consider the remaining part of our graph. In this arc, we are again moving or we are again walking through a closed walk or through closed trail. So we get a new circuit, that is we say S. If S and union T is equivalent to G, then we can say, अब मैं इसको इक्वल कर दूं तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं जिस x के ऊपर इसको जोड़ दूंगा उस x से वापस मूव करता हुआ यहाँ पर आके और फिर मेरी वापस क्लोज वॉक स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मैं v से x पर आया और x पर आने के बाद में चूंकि इस t को मैं इसमें इंक्लूड कर लूँगा तो फिर मैं इधर से होता हुआ वापस x पर आऊँगा, मतलब इस वापस x पर आऊँगा और इस x के बाद में वापस ये y वाली पहले वाली जो फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने जो क्लोज वॉक कंसिडर की थी उसके ऊपर मूव करते हुए वी पर पहुंच जाएंगे। और इस तरह से हम कहेंगे कि हमारा ग्राफ की अगर हर एक की वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो ये एक यूलेरियन ग्राफ है। अगर इन दोनों का यूनियन जैसे यहाँ देख रहे हैं जी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ पार्ट इन दोनों की यूनियन के बाद में बच गया। तो कुछ पार्ट कौन सा बचा था अपने पास, वो पार्ट बचा था ये वाला पार्ट जो इस कॉमन वर्टेक्स टी के ऊपर रहा। तो इस टी के ऊपर मैं वापस वॉक कर सकता हूँ और इस वॉक को बोल देता हूँ यू। तो अब यहाँ देखते हैं अपन एस यूनियन टी यूनियन एस यूनियन, इसका नाम बदल दें अपन पी लिख देते, चलिए पी इज इक्वल टू जी। तो हम यहाँ हमारे पास मिल रहा है कि ये ग्राफ था, इस ग्राफ के अंदर अपन देख रहे थे कि ये कनेक्टेड ग्राफ है और हर एक की डिग्री भी इवन है।
तो हमें प्रूव करना था कि ये एक यूलेरियन ग्राफ है। यूलेरियन ग्राफ के लिए हमने जो एल्गोरिथम काम में लिया वो लिया कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद के अंदर हम एक क्लोज सर्किट बनाएंगे। सारी एजेस को यूज नहीं कर रहे जो आसानी से बन रहा है। तो मैंने पहले जो क्लोज सर्कल बनाया वो कुछ इस तरह से बना लिया, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। इस क्लोज सर्किट को मैंने नाम दे दिया टी, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जी, आवर मेन ग्राफ। दिस इज आवर ग्राफ जी, ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है। तो चलिए जो पार्ट इस टी में नहीं आया उसको अपन ने दोबारा ड्रा कर लिया। इस दोबारा ड्रा किए हुए पार्ट के अंदर मैंने जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों कनेक्टेड थे, ये दोनों ये और ये एक्स पर भी और वाई पर कनेक्टेड थे, तो मैं एक्स से भी स्टार्ट कर सकता था और वाई से भी स्टार्ट कर सकता एक नई वाक। तो मैंने चलिए यहाँ से एक्स से स्टार्ट कर दी, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा एक्स हो। इस एक्स से मैंने एक फिर क्लोज वाक कंसिडर की, इस ग्राफ के ऊपर मूवमेंट वाक किया इस तरह से कि कोई एज को 2 बार क्रॉस नहीं करूँ, मैं रिपीट नहीं करूँ। तो मैंने इस तरह से कर लिया ये वाक। फिर मैंने कुछ पॉइंट पोर्शन छूट गया मेरे से, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दिया मैंने। तो अब नया ये वाक आ गई जो कि क्लोज वाक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रेल है तो और सर्किट है ये। इस सर्किट को इस एस के अंदर यूनियन किया मैंने पहले वाले से और देखा कि ये जी के इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो हमने देखा एस यूनियन टी इज नॉट इक्वल टू जी, इट मीन्स सम पोर्शन आर स्टिल लेफ्ट। ये ट्राइंगल प्रपंच में नहीं मूव किया। तो ये ट्राइंगल किससे जुड़ा हुआ था, कौन से वर्टेक्स से जुड़ा हुआ था, तो टी वर्टेक्स से जुड़ा हुआ था। तो इस टी वर्टेक्स से फिर मैंने वाक स्टार्ट की। तो इसका मतलब ये करूंगा मैं, फाइनली मैं वी से स्टार्ट करूंगा, एक्स पर आऊंगा। एक्स पर आने के बाद में मैं इस वाक के थ्रू वापस एक्स पर आऊंगा, मीन्स वापस यहाँ आ जाऊंगा। यहाँ आने के बाद के अंदर मैं देख रहा हूँ कि इस टी का रह गया मेरा पॉइंट, कोई बात नहीं रह गया तो मैं एक्स और एक्स के बाद में वापस टी पर जाऊंगा। तो एक्स से टी और टी से मेरी वाक रहेगी। तो इसको जोड़ दिया तो नई जो वाक बनेगी इन दोनों के यूनियन से, एस और पी जिसका नाम दिया, तो एस और पी के यूनियन से जो वाक बनेगी वो ये वाक बन जाएगी। तो फर्स्ट इज टी वाक, देन एस वाक, दिस वन, एंड देन पी। तो हम पीछे से वापस चलेंगे कि पी को एस में यूनियन करेंगे, एस को टी में यूनियन करेंगे, और इस तरह से अपने पास कंप्लीट वाक आ जाएगी कि हर वर्ड एज को कवर करते हुए एक क्लोज वाक प्राप्त हो जाएगी। और चूंकि इस केस के अंदर हम कह रहे हैं कि हर एक की डिग्री आपकी 2 है, सो किसी भी ग्राफ से अगर वर्टेक्स से अपन निकलेंगे तो वापस उसके अंदर एंटर भी करेंगे और इस प्रकार अपन एक यूलेरियन ग्राफ प्राप्त कर लेंगे। चलिए इसकी लैंग्वेज क्या रहेगी इसको देखते हैं। Suppose all vertices of G are of even degree, then we shall prove that G is Eulerian graph. For this, it is sufficient to prove that there exists a circuit which consists of all edges of G. क्लियर है कि अगर G को Eulerian से प्रूव करना है तो हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वहाँ एक सर्किट है या कहें कि क्लोज ट्रेल है जो G की हर एज को कंसिस्ट करता है। We construct a walk starting from an arbitrary vertex V. जैसे इस एग्जाम्पल में अपन ने लिया कि वर्टेक्स V से स्टार्ट किया, एंड रनिंग थ्रू द एजेस सच दैट नो एज इज ट्रेवर्स मोर देन वंस, कि किसी भी एज पर एक से ज्यादा बार नहीं मूव करे। सिंस ईच vertex is of even degree, so we can exit it from each vertex in which we entered. क्लियर है कि हम किसी भी वर्टेक्स के अंदर एंटर करेंगे तो हमारे पास एग्जिट करने के लिए साधन है क्योंकि उसकी डिग्री 2 है। सो इस तरह से हमें एक क्लोज ट्रेल टी प्राप्त हो जाएगी, जैसे अपन ने अपने एग्जाम्पल के अंदर जो पहले स्टेज के अंदर ये ट्रेल टी प्राप्त कर लिया। इफ दिस क्लोज ट्रेल टी इंक्लूड्स ऑल एज ऑफ जी, देन इट इज यूलेरियन सर्किट and G is an Eulerian graph. If not,
देन रिमूव दिस सर्किट फ्रॉम जी। तो हमने इस सर्किट में से इस टी को, जैसे अभी एग्जाम्पल लिया था, इस पूरे ग्राफ में से इस टी को हमने रिमूव कर लिया, ये ग्राफ बच गया। द रिमेनिंग ग्राफ एंड ऑब्टेन सब ग्राफ जी डैश, इसका नाम हमने जी डैश रख लेते हैं, whose vertices are also of even degree. Since G is connected, so G dash must touch T at least one vertex से X। तो जैसे अपन ने यहाँ देखा कि ये अपनी T थी, ये G डैश था, तो अपन देखा कि कम से कम एक वर्टेक्स ऐसा X मिलेगा कि जिनके ऊपर ये दोनों G डैश और T दोनों एक दूसरे को टच करें। So starting at X, now construct a new trail starting which will eventually terminate at itself, since G dash is also a graph whose all vertices of even degree। चूंकि G dash की भी हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन है, अपन मान के चल रहे हैं कि हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है। तो जब T पहले पाथ को निकाल देते हैं, पहले क्लोज वाक को बाहर निकाल देते हैं अपने मेन ग्राफ से, तो बचे हुए ग्राफ के भी हर वर्टेक्स की डिग्री इवन ही रहेगी। तो जो कॉमन वर्टेक्स है उसकी डिग्री भी इवन ही है। तो वहीं से अपन स्टार्ट करिए एक नई क्लोज ट्रेल बनानी, और उस क्लोज ट्रेल का नाम अपन दे दिया S। एंड दिस क्लोज ट्रेल S कैन बी कंबाइंड विद T एट जॉइनिंग पॉइंट X फ्रॉम ए न्यू क्लोज ट्रेल हैविंग मोर एज। तो एक नई ट्रेल बन जाएगी, क्लोज ट्रेल, जो पहले से बड़ी होगी। इफ दिस न्यू क्लोज ट्रेल इक्वल टू G, देन G इज यूलेरियन। अदरवाइज कंटिन्यू दिस प्रोसेस। जैसे अपन ने यहाँ देखा कि मैंने T पहले क्लोज ट्रेल बना ली थी, T के बाद मैंने S बनाई, इन दोनों का यूनियन भी मेरे ग्राफ के इक्विवेलेंट नहीं है, तो हमें जो और पोर्शन बच गया, ये पोर्शन बच गया था, तो ये पोर्शन कॉमन वर्टेक्स T पर था, तो इस कॉमन वर्टेक्स T से मैं एक नई ट्रेल वापस क्लोज ट्रेल बनाऊंगा। तो कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल वी गेट द यूलेरियन सर्किट इन G, दस G इज एन यूलेरियन ग्राफ। अगर अपन इस तरह से चलते जाएंगे तो कोई भी एज अपनी नहीं बचेगी और हमें एक यूलेरियन ग्राफ प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू।